Free audio post-production by alphonic.com. Hi there. Welcome back to Being Your Ray. And for today's episode, I want to give a shout out to Ankur Varku because it's through his content that I first got to know about this whole aspect of a failure resume, because success resumes are overrated और वो तो सभी बात करते हैं उसके बारे में, but no one talks about the ugly behind the scenes, and I want to talk about it, and I have openly spoken about most of my failures. बट कोई ऐसे ऑल आउट वीडियो नहीं है, वन सिंगल वीडियो जहाँ पे सब कुछ समराइज हो रहा हो एंड हाउ ऑल ऑफ दोज पार्ट्स हैव शेप्ड मी. So yeah, I don't know if I will do like a success resume wala cheese ever, because that sounds a bit too, yeah, it's not a humble thing, and it feels very weird for me to talk about my successes. तो जहाँ पे ज़रूरत होता है एंड इट्स नीडेड फॉर द स्टोरी एंड टू बिल्ड दैट कॉन्सेप्ट, वहाँ पे मैं बता देती हूँ, बट अदरवाइज आई डोंट ओपनली टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आई हैव अचीव्ड एज मच. तो yeah, anyway, but let's leave that. The focus right now is the failure part. And yeah, my learnings out of it. So I think the first time I faced any kind of failure was in my 8th or 9th standard, and that was a Marathi paper. I failed in that, and that was totally on me, because first of all, I did not like studying Marathi, and दूसरी चीज, I was good with studying at the last minute. Like studying did not feel like studying because class में ही पढ़ाई हो जाती थी, and yeah, it was more like something you do end moment पे and somehow just get good scores because yeah, maybe you just enjoy the subject and वैसे वाला चीज़. बट मराठी बिकॉज मेरा कभी इंटरेस्ट ही नहीं था, तो मैं कभी उसको ध्यान ही नहीं दे पाती थी, एंड आई नेवर टुक इट एज सीरियसली. इट वॉज जस्ट लाइक this is challenging for me, so I'm just not going to take it seriously and I'm going to avoid it. So I had avoided the subject like plague for the longest time till the exam तक भी. अभी सिंस मैंने क्लास में भी ध्यान दिया है, मैंने कभी उसको जानने की ही कोशिश नहीं की है, बिकॉज इट्स समथिंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. आई हैव कम्प्लीटली अवॉइडेड इट. तो वो चीज़ मेरे अंदर ऐसे बैठ गई थी. तो इवन दो आई सैट लास्ट मिनट एग्जाम प्रेप करने से पहले, everything was new to me. I did not know how to prepare. And yeah, that's when I failed and I cried a lot because that was like my first failure as a baby. And yeah, I was so sad to like, क्या बोलते, disappoint my parents, because I was a good student, like an above average student. I used to score out of marks in quite a few subjects as well, or at least close to like the क्या बोलते हैं highest marks. तो मुझे बहुत ऐसे ये हो गया था कि how could I get so low. And yeah, somewhere I just felt like कि चाहे कितनी भी ढील दे दूँ मैं लाइफ को, इट विल वर्क आउट फॉर मी, एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं फेल हो जाऊँ कभी. बट समवेयर देयर वाज आल्सो दिस फियर कि व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट. आई फेस्ड आउट. So sorry, but yeah, I just did not want to deal with the subject, and my getting out of that comfort zone and dealing with it was like a lot to me, and that ended up in taking no effort. So obviously magically मुझे कोई marks नहीं मिल जाने वाले, even though the teacher gave me like grace marks because she knew I was a good student and I passed that semester. But in reality I had failed. So there's that. And how it has shaped me is that there is no escape to honest sincere effort, because yeah, no matter how much you think कि तुम तोप हो और तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, but you really can't escape effort. Effort is the only thing that it all boils down to, and unless you are not justifying that aspect, things are not going to work out. So फिर मैंने कभी ऐसी चीज़ की नहीं, क्योंकि मुझे अपनी ही आँखों पे गिरना नहीं था. सो नो, एक्चुअली नीट के टाइम पे हो गई थी चीज़ें सिमिलर, बट that was a whole different ball game, so we'll get to that. Okay, now the second was when I left my
drawing classes. So this intermediate and elementary classes, if you've heard about, I think 9th 10th के आसपास ही होता है. So my parents had put me up in this another drawing classes thing जहाँ पे I would prepare for this exam, and I was good at drawing and painting. मतलब that is what my parents saw, इसलिए उन्होंने मुझे उसमें डाल दिया. बट द मिस्टेक दे मेड इज मैं ड्राइंग और पेंटिंग हॉबी के लिए करती थी और क्लास में कभी करवा देते थे तभी करती थी. उन्होंने मुझे उसमें भी एग्जाम में डलवा दिया, एंड देन दैट टुक अवे ऑल द फन आउट ऑफ इट. एंड देन मैंने दिया इंटरमीडिएट, ठीक ठाक स्कोर आया मेरा, एंड देन आई वाज लाइक सॉरी आई गेव माई एलिमेंट्री. फिर मैंने सेकेंड लेवल जो था इंटरमीडिएट वो नहीं दिया, एंड माई डैड वॉज वेरी लाइक disappointed about it कि you didn't go ahead with it and you just leave things halfway, you have so much potential. तो मुझे वहाँ पे realize हुआ कि you can be good at things and enjoy it. You don't have to convert it into something because then you'll become bad at it. So, for example, I used to enjoy drawing and I was good at it. I also got great like compliments and marks in it. But जैसे ही तुमने उसको कुछ कन्वर्ट कर दिया इन अ कन्वेंशनल सेंस कि चलो अभी इसके एग्जाम भी देते हैं, तुमको बाकी लोगों से compete भी करवाते हैं, इसका एक टेस्ट रखते हैं सिस्टमैटिक जिसमें तुम्हें सारी टाइप की ड्राइंग्स करनी पड़ेगी, ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे एंड यू हैव टू. तो वो जो एक क्रिएटिव फ्लो था, क्योंकि हमारे क्लासेस में क्या होता है मैं वो बताती हूँ. पहले स्कूल में क्या होता है कि तुम्हें एक रफ आउटलाइन बता दिया जाता है कि आज क्या ड्रॉ करने वाला है, बाकी इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू टेक इट अहेड. बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन तुम्हारा एक एक चीज कंट्रोल होता है कि अभी तुमने फॉर एग्जाम्पल यू हैव ड्रॉन अ फ्रूट, तो नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, एंड देन द टीचर विल करेक्ट इट फॉर यू एंड दे विल मेक इट मोर ब्यूटिफुल. सो योर इम्परफेक्शंस and the control you have on your drawing वही छूट जाता है. So I think that got a bit deep, but you get it, like how it relates to life as well. जब तुम कोई चीज को अपनी हॉबी और अपने मजे के लिए कर रहे हो and just because you're good at it, उसको फिर जब तुम कंट्रोल करने लग जाते हो, दूसरों से compete करने लग जाते हो, and then someone starts to examine and evaluate your work, that is when it turns into bad work. So yeah, that's something I learned as well कि जो चीज़ें तुम्हें पसंद है जिसमें तुम अच्छे हो शायद वो भी खराब हो सकती है अगर तुमने ऐसे उसको इवैल्यूएशन के थ्रू ये कर दिया. बट इट नीड्स टू बी समथिंग लाइक अ क्रिएटिव फ्लो लाइक सिचुएशन जहाँ पे तुम्हारे पास कंट्रोल हो, क्रिएटिव कंट्रोल हो. यू आर डिसाइडिंग एवरी हर हर ऐसे कर्व कैसे बनेगा, कैसे तुम पेंट करोगे, it comes intuitively to you, then it will be a masterpiece which can be like only unique to you and ये तुमने बनाया है. वरना सब ही एक जैसा बनाने जाएंगे और वो compete करेंगे उस एग्जाम में, तो what is like the masterpiece in it. So anyway, बहुत ज़्यादा controlling environment हो गया था. So I did not enjoy drawing there for the exam purposes. तो वो छोड़वा दिया था मैंने. That was one of my failures, like the elementary exam. I did not pass with well marks. ऐसा कुछ तो था. तो yeah, second is that. Third is something I've spoken about quite expansively, but I'll do it again. The NEET one. And oh my god, like it just felt like मुझे किसी ने खाई में फेंक दिया है और कुछ आइडिया नहीं है मुझे कि कैसे नेविगेट करे. मतलब पत्थर पकड़ने का भी टाइम नहीं मिल रहा, ना तो समझ आ रही है कि क्या हो गया भाई. ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. लाइक फ्रॉम इट वाज आउट ऑफ द माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कि मुझे 10th के बाद मैं कोई स्ट्रीम चूज करूंगी और मेरी लाइफ इतनी उलट हो जाएगी, दैट टू फ्रॉम डे वन. I'll talk to so I'll mention about this incident to you. I had scored like good marks in my 10th standard, right? And मैं महेश ट्यूटोरियल्स जाती थी. तो महेश ट्यूटोरियल्स में जब भी तुम्हें 90 प्लस आते थे, पहले तो वो तुम्हें एकदम ग्रैंड पार्टी के लिए लेके जाते थे पवई या कहीं. तो if you're from Mumbai, you'll know where it is. And like this whole convention center and all, and वहाँ पे तुम्हें award मिलेगा, तुम्हारे pictures click हो गए, and like there are these dance performances. I remember Dharmesh came to ours. If you are like an early 2000s kid who used to watch Dance India Dance and stuff, you'll know who Dharmesh is. Anyway,
ऑफ टॉपिक हो गया ज़्यादा, बट ऑल इन ऑल इट वाज़ अ ग्रैंड फंक्शन, ठीक है? एंड वी हैड अ बॉल ऑफ अ टाइम, लाइक आई लव्ड इट, आई वाज़ लाइक वाओ यार, दिस इज़ व्हाट सक्सेस फील्स लाइक। एंड वैसे वाले फेज़ में थी मैं, ठीक है? एंड हमारे जब तुम उतने मार्क्स लाते हो उसके बाद दे पुट योर पिक्चर्स इन न्यूज़पेपर, तो मैंने वो न्यूज़पेपर संभाल के रखा था एंड आई हैड पोस्टेड इट ऑन माय इंस्टाग्राम स्टोरी, वेरी क्रिंज एंड आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, बट वो स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ फ्रॉम माय 15 ईयर ओल्ड के पर्सपेक्टिव से। सो हाँ, मुझे तो लगा था आई हैव वन एट लाइफ एंड अभी तो बस आगे ही जाना है क्योंकि गिन के 2 फेलियर्स देखे थे तब तक। तो एनीवे आई हैड पुट दैट अप ऑन माय स्टोरी एंड आई हैड दीज एग्जाम्स। हमारे जो पहले ही एग्जाम थे जब कोई किसी को जानता नहीं था, किसी को कुछ ज़्यादा दोस्ती हुई नहीं थी, उसमें आई हैड स्कोर्ड वेरी बैड। और पेपर सॉल्व करते वक्त मुझे पता था कि उतना नहीं आने वाला एंड आई नॉट वर्कड हार्ड इनफ फॉर इट, क्योंकि फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज एक तो देयर वर वेरी लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडिंग एंड मेरे ऊपर से जा रहा था सब, मतलब नथिंग वाज गेटिंग रजिस्टर्ड इन माय हेड एंड मुझे लगा मे बी इट्स जस्ट अ पर्सनल थिंग एंड आई गेट ओवर इट एंड मे बी आई जस्ट हैव टू गिव इट टाइम, बट रियली नथिंग वाज penetrating my head. So yeah, it was just like मैं थोड़ा ग्रिप लेने जाती उसके पहले वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी वो प्रॉब्लम कि जब 2 वीक बाद एग्जाम हुई, I did not know how to deal with it. So this was like मराठी पेपर on steroids, like 10x पे कोई मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आई कैन वर्क, मुझसे मराठी पेपर नहीं हो रहा था, तुम मुझसे फिजिक्स केम और बायो का एक पूरा पेपर करना एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड या आई लिटरली वाज लाइक नहीं हो पाएगा मुझसे, पता नहीं, तो मैंने ऐसे जैसे तैसे करके पेपर दिया था एंड आई न्यू दैट इट्स गोइंग टू बी बैड, बट इट वाज सो बैड आई केम लास्ट, आई लिटरली केम लास्ट इन अ क्लास ऑफ आई डोंट नो 100-200 people, I don't remember. And oh my god, I was devastated that day. And remember the story that I was talking about जो मैंने डाली थी, तो of course my classmates had seen that कुछ टाइम पहले and they mocked me. मतलब दूर से, मुझे तो सुनाई नहीं, मतलब मुझे सुनाई दिया था, वो लोग दूर बैठे थे बट ऐसे मेरे सामने आके नहीं बोला था, बट दे वर जस्ट लाफिंग कि हाँ हाँ न्यूज़पेपर में एंड नाउ इट्स लाइक द लास्ट पर्सन एंड इट वाज लाइक आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि देयर वर डम्बर पीपल इन द रूम जो ऐसे कुछ भी बकवास जोक्स मारते हैं, दोस काइंड ऑफ पीपल, एंड यू एक्सपेक्ट देम टू बी डम एंड देन इट टर्न्स आउट दैट दे एक्चुअली स्टडी। सो वैसा एकदम फुल शॉक मोमेंट हो गया था एंड आई वाज सो कंफ्यूज्ड कि ये क्या हो गया मेरे साथ। एंड या दैट वाज लाइक माय फर्स्ट नीट फेलियर इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद थिंग्स ओनली वेंट डाउनहिल। जितना भी मैं ट्राई कर रही थी ऐसे समेटने का, उतना सब चीज़ें बाहर जा रही थी। सो लाइक दैट एग्जांपल ऑफ व्हेन यू पुट वाटर इन अ स्ट्रेनर और वो होल्स में से निकलते ही जाता है, जितना भी पानी तुम ऐड करो उतना निकलते ही जा रहा है। सो आई वाज ओनली क्या बोलते हैं वॉकिंग ऑन एग शेल्स ड्यूरिंग दैट होल टाइम एंड मुझे जेन्युइनली नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे जी रही हूँ और हाउ शुड आई लाइक गेट बैक टुगेदर, गेट एवरीथिंग इन लाइन। नहीं ही हो पाया था मुझसे, मतलब इट वाज just not happening. Like I can't explain the helplessness and maybe if it wasn't for that age, शायद I would have been dealt it better at this age and understood things better. But तभी तो मुझे लग रहा था मेरी ही सारी गलती है and I just can't deal with it and now I realize that I was not the right person for that course altogether, बट तभी मुझे नहीं समझ आ रही थी वो चीज़ें एंड देन आई ऑल्सो टुक अ ड्रॉप ईयर बिकॉज मुझे लगा कि मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया है अपने एंड से, तो मुझे करना चाहिए एंड ओ माई गॉड दैट वॉज अ बिगर मिस्टेक बिकॉज इवन आफ्टर आई वॉज ट्राइंग डिसिप्लिन होके सीरियसली करने का, मुझसे तभी भी चीज़ें नहीं हो रही थी। फिर मुझे समझ आया कि नहीं, ये मैं बनी नहीं हूँ इसके लिए, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो I realized that during that time and I just felt like with coaching institutes it's more like जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जाता है, पर जिन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है, फिर तुम फिगर आउट कर लो तुम्हें तुम्हारा कैसे देखना है।
एंड इट गॉट सो बैड दैट वी वरंट श्योर कि हम 12th के बोर्ड्स भी पास कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आई वाज एन आकाश। तो आकाश के मॉड्यूल्स ही इतने ज़्यादा लेंथी होते हैं कि हमने वो एनिमल किंगडम वो सब एक एक महीना हम वही कर रहे हैं, उसका ही एग्जाम दे रहे हैं, और कितना एम्स लेवल का प्रेप चल रहा है, पर हमें यही नहीं पता कि हम बोर्ड्स एग्जाम भी पास कर पाएंगे कि नहीं। तो पहले तुम एनसीईआरटी से करवाओ, वैसी चीज़ें खत्म करो, फिर एडवांस में जाते हो। सो आई डोंट थिंक देयर वाज लाइक दिस सेटअप ऑफ इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, वो कुछ नहीं हो रहा था। इट वाज जस्ट लाइक फुल ऑन लेट्स गो गेट नीट एंड एम्स वाला वाइब चल रहा था वहाँ पे। वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी कॉम्पिटिटिव। सो हाँ, एनीवे दैट वाज लाइक द सेकंड बिगेस्ट ऐसे ब्लो। एंड ऑफ कोर्स जब तक एग्जाम देख के तुम्हारे स्कोर्स नहीं आते तब तक तो तुमको ग्रेविटी समझ नहीं आती। फिर तो स्कोर आया तो हिल ही गए, मतलब कि भाई बहुत सीरियस हो गया ये तो। इतना तो सोचा, आई एम एबल टू लाफ एट इट नाउ बिकॉज इट हैज बीन अ वाइल, बट तभी इट वाज डेवास्टेटिंग। आई थॉट माई लाइफ हैज एंडेड, मैं फुल वर्थलेस कुछ काम की हूँ, एंड आई हैड द वर्स्ट काइंड ऑफ एंग्जाइटी एंड ऑल ऑफ दिस एग्जाम्स को लेके, इतना कि मुझे अभी भी कभी एग्जाम देने जाना पड़ता है ना, आई फील दैट एंग्जाइटी विद इन मी। एंड even after so many years of work that I've done on myself and the confidence that I've built, exams have a very bad effect on me. So, which is why I'm passionate about getting people out of that competitive zone, क्योंकि वो बैठ जाता है भाई तुम्हारे दिल में। I don't know कब तक तुम्हें वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी, एंड लाइक बस मैं पास हो जाऊँ, एंड लाइक आई डोंट हैव टू गो थ्रू द ह्यूमिलिएशन वाला चीज़। तो वो चला था काफ़ी टाइम तक। एंड द वे इट हैज़ शेप्ड मी is it was the first time that I really hit rock bottom and felt completely out of place. I did not know where to start. I did not know what I would do with my life, like most NEET aspirants, क्योंकि तुम सोच के तो डॉक्टर का सोच के ही जाते हो, बाकी तुमने कोई और ऑप्शन रखा नहीं रहता है दिमाग में। और तभी तो इतनी खराब हालत थी कि मुझे लगा था मैं एक डिसीजन नहीं ले सकती अपनी लाइफ का, तो मैंने बस ऐसे छोड़ दिया था कि लाइक व्हाटएवर माय पेरेंट्स विल से आई विल डू इट काइंड ऑफ अ थिंग। And then things started changing in my first year of college when I got into pharmacy. And that was not because of the course, वो एक अलग त्रास है that I'll get into. But yeah, the whole NEET setback had ऐसे मुझे हिला के रख दिया था, in the sense that I had started questioning a lot of bigger questions कि क्या मतलब है ये सब करने का, क्या मतलब है इतना एफर्ट डालने का, क्या मतलब है कोई भी चीज़ करने का, क्या चीज़ है जिसके लिए मैं बनी हूँ। और हाँ, आई थिंक अगर नीट नहीं हुआ रहता ना तो शायद मैं अभी तक एक कन्वेंशनल लाइफ जी रही होती, विच इज़ ट्रू लाइक 50% ऑफ इट, बट अ 50% ऑफ माई लाइफ इज़ नॉट कन्वेंशनल, इज़ वेरी rooted in doing something that I love or that defines me and is like a spiritual, has a very strong spiritual aspect to it. But पहले वैसा नहीं था। मुझे लगता है अभी भी I would have been that person अगर मैं कोई और कोर्स कर रही रहती या फिर कुछ भी और कर रही थी जिसमें I wouldn't have hit the rock bottom. I feel I would have been complacent with life और मैं कभी वो क्वेश्चंस नहीं करती जो तुम ऐसे मरने के वक्त सोचने लग जाते हो वैसे क्वेश्चंस। क्योंकि लाइक सॉरी टू से बट द होल नीड थिंग फोर्सेस यू टू आस्क दैट क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। तो वो एक चीज़ ने काफ़ी शेप किया है मुझे लाइफ के बारे में, और जिस चीज़ में तुम टाइम डाल रहे हो, अपना एनर्जी डाल रहे हो उसमें सोचने के बारे में। फिर उसके बाद भी मुझे काफ़ी टाइम लगा टू लाइक सॉलिडिफाई ऑन वेयर माई टाइम एंड एनर्जी गोज, बट एटलीस्ट एक स्टार्ट तो हुआ, एक सीड तो डाला मैंने। वो सीड भी शायद नहीं होता अगर ये नीट वाला एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। सो या विच इज़ वाई आई से आई एम ग्रेटफुल फॉर द एक्सपीरियंस बिकॉज दैट हैज़ मेड मी come in contact with my true center, and that was the start of everything beautiful that I am experiencing today. So yeah, in my first year of pharmacy I discovered writing because one of my friends just क्या बोलते हैं encouraged me and they were like, oh, you should do this on the side, and
explore it a lot more. Looks like you are good at it. And I was like, I am not good at anything. I'm worthless. मैं वैसे वाले ही zone में थी. Please don't put all of those thoughts in your head. It's so negative, बाप रे. Can't believe I can't relate to that person as much now. But yeah, I was in a very, very bad space. And kudos to the friend with a lot of support. I was able to get out of my mindset of not being able to contribute to anything and not being good at anything. तो मैंने राइटिंग करना शुरू किया. आई लव्ड द प्रोसेस ऑफ इट. मुझे पहली बार ऐसे लगा कि हाँ, आई कैन बी कंसिस्टेंट एट समथिंग, आई लाइक समथिंग, एंड मुझे मज़ा आने लगा था वंस अगेन. लाइक जो मुझे स्कूल में आता था वो आई हैड स्टार्टेड फीलिंग फाइनली. सो या अराउंड दिस टाइम, वो तभी कोविड का टाइम था एंड आवर कॉलेजेस वर गोइंग टू रीओपन अगेन. एंड ड्यूरिंग दैट रीओपनिंग वाला टाइम, सो फार्मेसी में एज अ बैक स्टोरी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा होता है. मेरी केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी. मुझे जैसे ही मेरा फर्स्ट केमिस्ट्री का लेक्चर हुआ था विच वॉज इन सेकेंड और थर्ड सेम, आई गॉट अ पैनिक अटैक एंड आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि मैं कैसे डील करूँगी इस सब्जेक्ट से. मुझे केटी लग जाएगी, मैं कैसे करूँ. मेरा नीट का बेसिक्स ठीक नहीं, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव योर बेसिक्स क्लियर्ड. एंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉज नॉट ईजी. आई वॉज वेरी स्कैर्ड कैसे होगा, क्या होगा. एंड we also had like a meeting with our professors where they mentioned कि third fourth year में तो और भी difficult हो जाता है. And I was so scared about it that I literally went to my parents and told them that I want to take a drop. I can't continue. And I was in second year at that time. And that this is like my third failure story. And my parents were like, no, that is not going to happen. Like, excuse me, you are in the middle of the boat. तूने हमें अगर एटलीस्ट 2 साल पहले बता दो तो हम सोच भी सकते थे, बट अभी नहीं होने वाला है. एंड मेरा उसमें काउंटर था कि अगर ये ड्रॉप कर लिया तो तू क्या करेगी. तो मैंने बोला मैं बीए इंग्लिश करूँगी, क्योंकि मेरा ऐसे लिटरेचर और राइटिंग को लेके इंटरेस्ट तभी जागा था. मुझे समझा था कि मे बी दिस इज समथिंग दैट आई एम मोर सूटेड फॉर. तब तक मुझे आइडिया ही नहीं था. आई वॉज नॉट एक्सपोज टू अदर स्ट्रीम्स और आई हैड नॉट टेकन द initiative to give it a chance. So yeah, and my dad was just like, तुझे क्या जॉब मिलेगी, तू टीचर बनेगी, क्या करेगी भी इंग्लिश करके एंड स्टफ, लाइक पैसे का क्या होगा एंड ऑल ऑफ दैट. तो ऑफ कोर्स आई डिड नॉट हैव एन आंसर टू दैट. तो मैंने एक बात ध्यान ऐसे दिमाग में बना ली थी कि मैं राइटिंग से पैसे कमा के दिखाऊंगी. मुझे नहीं पता कैसे, क्या, कब, मैं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अभी क्वेश्चन पोज कर लिया है पापा ने, तो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ वाला चीज़. तो फार्मेसी तो मैंने ये नहीं किया. आई कंटिन्यूड माई डिग्री, बट साइड बाय साइड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई राइटिंग स्किल्स एज वेल. एंड लो एंड बिहोल्ड आई गॉट अ जॉब विद इन 6 to 7 months as a writer in a content agency, which is a content writing wala agency only. And yeah, I was like managing a few things there, and basically my role was helping clients grow on LinkedIn. So it was a very new space and it was at one of the best content agencies. तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि बिगिनर को कैसे ले लिया, एंड दिस इज़ लाइक लिटरली डिवाइन इंटरवेंशन. एंड तभी मेरा ऐसे स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी बढ़ने लग गया था. बिकॉज सो द वे आई गॉट दिस जॉब विच आई बिलीव टू द डेट इज़ बिकॉज जब मेरे साथ ये सब हो रहा था कि मुझे जॉब लेनी है, मुझे पैसे कमा के दिखाना है राइटिंग से, आई रोट इट डाउन ऑन अ चिट एंड आई हैड अ वेरी ऐसे intention attached to it, and I had taken action on that as well. But I had written down कि मुझे third year शुरू होने से पहले I want a job. Third year or fourth year, I don't remember. I want a job. And just before my second year was going to end, I got a job. And I could not believe it. I just felt like out of everyone, how me? So yeah, anyway, तो तब जाके मेरा इंटरेस्ट थोड़ा जागने लगा. I started taking spirituality a lot more seriously and understanding it all, and that opened up new avenues of growth that I'm still obsessed to till this date. And I've discussed about this in detail in the manifestations wala episode. You can go ahead and check it. I don't believe in those and do it regularly now, but तभी I just wanted to put a thought out in the universe. I was not ऐसे कि सोच लिया है कर लेंगे. I was very invested in the process and I was taking action towards it. So I don't
really think it was that, but I just feel like I had God support, and I also like collaborated well during that time. So things happened perfectly. But during दिस होल टाइम जब मुझे लगा था कि मैं मेरा केमिस्ट्री का पेपर भी पास नहीं कर पाऊँगी, आई मैनेज्ड टू वर्क टू द लाइक कॉलेज एंड अ पार्ट टाइम जॉब टुगेदर, 2 थिंग्स एट द सेम टाइम, एंड दैट वाज़ अ ह्यूज विन फॉर मी। क्योंकि तुम सोच रहे हो, जब मैं नीट का पेपर दे के आई थी, मुझे जब वो 2 साल कर इतना सब जाने के बाद भी इट फेल्ट लाइक आई वुड नॉट अमाउंट टू एनीथिंग इन माय लाइफ, टू नाउ व्हेन आई एम एबल टू handle 2 things at the same time, it was a very big deal for me. So that brought a lot of confidence in my life. I think one thing that money does is it really brings you a level of confidence that not a lot of things can get to your life. So I would definitely recommend getting there. Like, I know I always talk about divine wealth, and I wish that is your first introduction to money. But even if it is not, I can tell you it will bring a lot of confidence to your life. तो ऐसा नहीं है that I'm against money or something. मैंने खुद भी practical जो वाले ways रहते, जो लोग बोलते logical ways, उससे ही पैसे कमाए थे. I just don't think it's sustainable. So in my case, it was not sustainable. मुझे कुछ महीनों में ग्रोथ नहीं दिख रही थी, एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक ये तो नहीं चलेगा ज़्यादा टाइम, मुझे कोई दूसरा तरीका सोचना ही पड़ेगा. बट yeah, because of that experience and that failure of कि मुझसे नहीं हो रही है चीज़ें, पढ़ाई नहीं हो रही है, and my dad just being like, no, you're not gonna get a drop, and I took it upon myself, and that led me to getting a job that really shaped everything. And I just felt like अगर मैंने सोच ली ना चीज़, मैं कल सोच लिया, मैंने उसके ऊपर ऐसे फोकस पूरी तरह से डाल दिया, तो आई विल बी एबल टू ब्रिंग इट टू माई रियलिटी. तो वो एक कॉन्फिडेंस वहाँ से आया था. एंड या ये भी मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, बट द सेकेंड ईयर वाला थिंग वाज आल्सो वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे वापस नीट के ये सब आ रहे थे रिफ्लेक्शंस, एंड आई वाज वेरी वेरी स्कैर्ड, एंड दैट पैनिक अटैक वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड एन एंजाइटी अटैक एवर. तो मुझे लगा कि आई विल नॉट बी एबल टू survive this whole thing. It was too much for that moment, but yeah, it all led to something beautiful, and gave me a level of confidence that I could not have imagined. So one is that. All right, क्या हो गया, 3 4 हो गए शायद. और yeah, I think the one that happened after graduating from college is the most recent one, where I thought like चलो अब तो मैं अपने terms पे अपनी life जीऊंगी. And then I was introduced with another phase of life where things are not easy to deal with by yourself, और तुम्हें जितना लगता है उतना बेड ऑफ रोजेस नहीं है चीज़ें. इट वोंट बी लाइक तुमने सोचा और हो गया. इट विल टेस्ट यू लाइक नो वंस बिजनेस, एंड स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग इट अलोन. बाप रे बाप, इट्स अ होल स्टोरी, एंड आई थिंक इसके ऊपर तो मैं काफ़ी बात कर चुकी हूँ, तो मुझे उसमें घुसना नहीं है. बट यू कैन लुक अप द एपिसोड्स ऑन फ्रीडम और लोनलीनेस या समथिंग ऑन दोज लाइन्स दैट आई मस्ट हैव क्रिएटेड. कीवर्ड डाल दो, मिल जाएगा, and you will find it out. उसमें I have spoken about it at length. But long story short, that whole year was just me trying to get a grip on myself all over again. So I feel like I'm reliving the NEET 2.0 experience, and I'm not complaining, because I feel like the NEET thing opened up a huge confidence block in me, and I turned out to be like completely different person after what happened to me during NEET. तो मुझे पता है ये जो फेस से जा रही हूँ मैं, it is going to turn me into a completely different human, and change is just about the corner, and I believe in that. I no more am afraid of failures or painful experiences, because मुझे पता है कि वो मुझे कितना कुछ दे के जाने वाले हैं. More than the successes that I've had, it's about these experiences that have shaped me. तो
Yeah, all of the failures that I've had have forced me to literally think and reflect on what is it exactly that I need to pay attention to. बिकॉज़ मैं किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही, इसलिए ही कुछ गलत हो रहा है। अगर मैं ध्यान दे रही होती तो नहीं हो रही होती चीज़ें वैसे। तो वही है, और काफ़ी बार तो इट इज़ योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, तुमने कभी वो चीज़ एक्सपीरियंस की ही नहीं रहती है, तो एज़ अ फर्स्ट एक्सपीरियंस यू एंड अप हैविंग लाइक अ 50-50% चांस कि सक्सेस होगा या फेल होगा। सो दिस वाज़ लाइक द लास्ट ईयर वाज़ लाइक माय एक्सपेरिमेंट कि क्या होगा देखते हैं, विदाउट पुटिंग एनी tight deadlines. But yeah, it was a very tricky one. I understood the importance of firstly having a community, having a good environment, and really having a solid spiritual routine. क्योंकि मैंने शुरू तो कर दिया था, but since I was in the beginner phases, I did not have the reasoning and the power to be consistent at it. मैं जितना भी ट्राई करती थी, एंड एवरी टाइम आई वुड मिस अ डे, आई जस्ट फेल्ट लाइक मुझसे कोई प्रोग्रेस हो नहीं रहा था, वरना जबकि दैट वाज नॉट द केस। इट वाज ओनली बिकॉज आई वाज न्यू टू दिस एंड आई वाज स्टार्टिंग खुद से। आई डिड नॉट हैव एनी पीयर्स और लाइक आई वाज नॉट गोइंग टू एन इंस्टीट्यूट टू डू ऑल ऑफ दिस। तो मेरे ऊपर मैंने सारा भार ले लिया था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। एंड व्हेन यू टेक अप अ न्यू हैबिट, इट इज़ बाउंड टू लाइक तुम्हारा दिमाग और तुम्हारे पास्ट हैबिट्स बीच में आने ही वाले हैं। तो मुझे पता नहीं था कि वो कितना ज़्यादा हावी हो जाता है तुम पे। एंड नाउ दैट आई हैव अ गुड ग्रिप ऑन माई सेल्फ एंड माई स्पिरिचुअलिटी एंड माई रूटीन इज़ इन अ गुड प्लेस, एटलीस्ट मैं प्रैक्टिस कर पा रही हूँ ढंग से, तो मेरा दिन अच्छा जाता है। आई एम एबल टू गेट मोर वर्क डन। सो yeah, anyway, that was for the last and the recent failure and how it has shaped me. So yeah, there's that. And I also want to share about this particular video that I saw today. Beautiful. I forgot the name of the channel, but I think it's Dead But Dope. But the name of the person is something else. Channel का वो जो रहता है ना, वो छोटा वाला 2 नाम रहते हैं, उसमें से एक नाम वो है. You can look it up. But yeah, she basically does like this Bhagavad Gita video documentaries type of stuff, and it's beautiful. And usme it was mentioned कि you don't have to be attached to success and failure because effort is the only thing in your hand. और एफर्ट से हम तभी भागते हैं जब हमारे अंदर फियर रहता है फेलियर को लेके। पर जब तुम फेलियर और सक्सेस को देख ही नहीं रहे हो, तुम सिर्फ एफर्ट को देख रहे हो, तभी यू स्टार्ट टू सी द चेंज। मतलब यू आर नॉट एज मच अफ्रेड ऑफ टेकिंग एक्शन। बट अगर फियर ऑफ फेलियर ही तुम्हें एक्शन लेने से रोक रहा है, देन इट इज़ नॉट राइट, देन इट्स नॉट यू सर्विंग योर ड्यूटी। एंड एफर्ट और टेकिंग एक्शन और कर्म योग इज ऑल अबाउट डिवोटिंग योर सेल्फ टू गॉड थ्रू वर्क सेल्फलेसली। तो नाउ आई मेक श्योर कि दिस इज लाइक माई डिवोशन टू गॉड। बाकी उनको मुझे कौन सी सीख देनी है उस चीज़ में से, इफ़ आई विल सक्सीड, इफ़ आई विल फेल, इज़ इन हिज हैंड्स, इट इज़ हिज डिसीजन। बट एफर्ट मेरे हाथ में है और मुझे वो लेना ही है सेल्फलेसली जितना हो सके, एंड डू इट एज in form of a devotion कि wow, I get to do this, I love doing this and I want to do this, not as a means to an end, like not like मेरा selfish motive क्या है, मुझे इसमें से क्या मिलेगा, वो सोच के नहीं करनी है चीज़ें. So yeah, I am more open to the whole effort aspect of it now. I don't look at taking action as success or failure. I look at it as मेरा एफर्ट मेरे हाथ में है और एफर्ट से मैं भागूंगी नहीं, एफर्ट से डरूंगी नहीं, और जितना हो सके सेल्फलेसली आई ट्राई टू सर्व गॉड इन सम फॉर्म। लाइक कुछ तो मुझे ऐसे करना है जहाँ पे आई एम expressing my love for God and he will share his blessings or whatever lessons he wants to
bring to my life, I will learn that. But effort से नहीं भागना है. That is the main crux of it all. तो yeah, I guess इतना ही था जो शेयर करना था मुझे. If you made it this far, thank you so much for listening, and I'll see you in the next one. Free audio post production by alphonic.com.